Hello everyone, good morning. I hope you all are doing well. Fine. Welcome back to our channel Current Event Explainer, where we discuss daily newspaper very elaborately. Fine. So I'm sorry for last 1 week we couldn't upload क्योंकि we were busy with something else. I know we have to do, हमें करना चाहिए था अपलोड बट हमने नहीं कर पाया क्योंकि we were busy in making a documentary क्लाइमेट चेंज पे। तो डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। इफ़ यू विश टू वॉच, जस्ट वॉच इट, इट्स वेरी नाइस। जिसमें हमने हिस्ट्री एक्सप्लेन किया एंड वी विल स्टेप बाय स्टेप वी विल एक्सप्लेन द होल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, तो वी वर बिजी इन दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आज से वी विल बी कंसिस्टेंटली अपलोडिंग द हिंदू एनालिसिस। फाइन, सॉरी फॉर दैट गाइस। ठीक है, तो एज यूजल टुडेज डेट इज 17 Feb 2024। आई होप आप लोगों ने अपना यूपीएससी का फॉर्म डाल दिया होगा। नहीं डाला है तो 5 March लास्ट डेट है, प्लीज़ अपलोड इट। एंड वन मोर थिंग, आई होप यू ऑल आर नोइंग अबाउट द चेंजेस विच यू हैव टू मेक दिस टाइम। दैट फोटोग्राफ, उसके नीचे तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 10 दिन पहले की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं। और जो फोटोग्राफ में आपने अपनी शक्ल दिखाई है वैसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में और मेंस और इंटरव्यू में अपीयर होना है। इफ़ यू हैव अ बियर्ड देन यू शुड बी इन बियर्ड। स्पेक्स लगा रखे हैं तो आप स्पेक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप इट्स ऑल क्लियर। फाइन, तो हम चलते हैं सीधा अपने डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, सो टुडेज डेट इज 17 Feb एंड ऑन हिंदूज फ्रंट पेज एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ आई है। वो है रशियन के अपोजिशन जो लीडर है ना, एलेक्सी नावाल्नी, उनकी हत्या हो गई है। अब ये हत्या है या इट इज़ अ नेचुरल डेथ, इट्स अ कंट्रोवर्सी स्टिल प्रिवेलिंग। और ये बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है। मतलब दिस इज़ नॉट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बट एज अ सिटीज़न, एज अ ग्लोबल सिटीज़न, इट्स अ वेरी 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 एक्साइटिंग न्यूज़। तो इसको समराइज़ करने के लिए आई हैव मेड अ वीडियो, 2 से 3 मिनट की है। सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वी ट्राई टू क्रिएट टेक्निकल आर्टिकल्स इनटू वीडियो फॉर्म और उसको मैं समराइज भी करता हूँ आफ्टर द वीडियो इज प्लेड। फाइन, तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है, जस्ट वॉच द वीडियो। Did the cold Arctic winds snuff out the life of Russia's most prominent opposition figure, Alexei Navalny? Or was there a darker, more sinister hand at play? This question has ignited a whirlwind of speculation, stirring the pot of political intrigue. Was it simply a tragic end in a harsh penal colony, or a calculated political assassination? To understand the implications of his death, we need to delve into the life and struggles of Alexei Navalny. Navalny, a lawyer by profession, emerged as a staunch anti-corruption crusader in the late 2000s. He was convinced that Putin's system of personal rule was entirely dependent on sycophancy and corruption. Navalny boldly stood at the forefront of the 2011-12 anti-Putin demonstrations, leading to his arrest. Upon his release, his spirit remained unbroken as he continued to protest against Putin's regime. In 2013, he took a daring leap into the political arena, running in the Moscow mayoral elections. Despite the lack of media coverage and facing incumbent Putin ally Sergei Sobyanin, he garnered over 27% of the vote. However, he was subsequently barred from running for public office. Despite the obstacles, Navalny remained a potent force in Russia's national consciousness. Labeled an extremist and a CIA puppet by the Kremlin, Navalny faced severe persecution. In a twist that would have broken lesser spirits, he fell gravely ill in August 2020, poisoned by Novichok, a nerve agent with Soviet roots. Despite this attempt on his life, Navalny, after his recovery in Berlin, chose to return to Russia. His homecoming, however, was met with immediate arrest. Yet even from prison, his voice roared against corruption. His YouTube channel, a beacon of dissent, continued to thrive, racking up millions of views and followers. Navalny was relentless in his fight against corruption, even from behind bars. Sentenced to 19 years and moved to one of Russia's toughest penal colonies, Navalny's struggle took a dark turn. This Arctic fortress, known as the Polar Wolf Colony, offered no respite. Situated almost 1900 kilometers northeast of Moscow, it faced brutal long winters and a summer plagued by swarms of mosquitoes.
Over 280 days Navalny spent in isolation. His death in this harsh wasteland adds to the growing list of Putin critics who've met mysterious ends like Boris Nemtsov in 2015 and Yevgeny Prigozhin in 2023. Navalny's death, shrouded in mystery, stokes the embers of a political conspiracy, leaving the world with more questions than answers. The death of Alexei Navalny sends shockwaves through the global political landscape. It raises daunting questions about the future of Russian politics, the course of international relations, and the fight against corruption. His demise may embolden or intimidate other dissidents, influencing the dynamics of opposition in Russia. Globally, it may strain Russia's diplomatic relations, particularly with the West. Nevertheless, the fight against corruption that Navalny championed continues. In the end, Navalny's death leaves a void in Russia's opposition. His legacy a testament to the power of resistance and the high price of dissent. I hope you have watched the video. ठीक है, रशियन अपोजिशन लीडर के बारे में आपको सब पता चल गया. फाइन, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइन, तो ठीक है. नाउ वी विल डायरेक्टली स्विच ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू. ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एडिटोरियल सेक्शन. जो हिंदू में पहला एडिटोरियल में जो आर्टिकल है वो है अ चांस टू स्टॉप द लॉन्ड्री साइकिल ऑफ पाकिस्तानीज इलेक्शन. ये आर्टिकल पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. Believe me, I have read it. Not important from our UPSC point of view. ठीक है, so we will leave it. Next जो आर्टिकल है वो है a clear message in the courts no to electoral bonds. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आर्टिकल का वो क्या है कि 2024 इसी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है ना उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो 2018 में आई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है 15 फरवरी 2024 को, अभी 2 दिन पहले. ठीक है, टुडे 17th. तो कोर्ट का ये कहना है कि फंडिंग लिमिट्स रिमूव्ड. जो ये इलेक्टोरल स्कीम थी ना, इसकी वजह से क्या क्या हुआ था. एक तो जो कॉरपोरेट हाउसेस थे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, जो कॉरपोरेट हाउसेस थे ना उन पे पहले लिमिट थी कि वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई ना तो उसने क्या किया, दे हैव रिमूव्ड दिस बैरियर कि वो कितना अमाउंट कॉरपोरेट वाले पार्टी में फंड दे सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया. शायद पहले 7.5% था ऑफ देयर प्रॉफिट और रेवेन्यू. ठीक है, इसको रिमूव करके उन्होंने कर दिया था अनलिमिटेड. ठीक है, दे आर नॉट आंसरेबल, इट्स वॉज मैंडेटेड दैट वो अनलिमिटेड कर दिया था. तो जजमेंट ने क्या बोला है, द जजमेंट सेज द चीफ रीजन फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस विच मे इन टर्न इंप्रूव द कंपनीज बिजनेस परफॉर्मेंस. मतलब देखो, पहले कॉर्पोरेट फंडिंग जो पार्टीज पे थी उस पर लिमिट थी. ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, उसने इस लिमिट को हटा दिया कि आप अनलिमिटेड कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 15 फरवरी का, उसने ये बोला कि भाई अगर आप कॉर्पोरेट्स को अनलिमिटेडली फंड करने दोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा. पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस को ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा कि अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो वो आपसे रिटर्न चाहेगा बाद में. तो जब आप पार्टी में आ जाएंगे या आप गवर्नमेंट बना लेंगे तो आप उसको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे. कैसे, यू विल मेक पॉलिसीज और यू विल मेक लॉज इन फेवर विद द कॉर्पोरेट ऑफ द कंट्री. ठीक है, जब आप ऐसे ये रिटर्न एक्सचेंज का प्रोसेस चलेगा ना तो इसमें डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स का डेथ होता है. ठीक है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स आर नॉट बीइंग fully utilized. It creates a situation of what we call a crony capitalism. ठीक है, यहां पे देखिए a crony capitalism. ठीक है, तो
इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑल्सो रिमूव्ड द अर्लियर लिमिट्स ऑन हाउ मच ऑफ इट्स प्रॉफिट अ कंपनी कुड डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने इस लिमिट को हटा दिया था। ठीक है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब वो अनलिमिटेड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, काफी सारी शेल कंपनीज बन जाएंगी। ठीक है, और वो केवल किस काम के लिए शेल कंपनीज बनाई जाएंगी, ताकि सारे फंड्स को चैनलाइज कर सकें पॉलिटिकल पार्टीज में। मतलब सारे फंड को कोई इंपॉर्टेंट कंपनी जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, जिसका रोबस्ट मार्केट कैपिटल है, ऐसी कोई कंपनी शायद ही होगी जो फंड करे। बट इनके थ्रू काफी सारी शेल कंपनीज मतलब सिर्फ जो ऑन पेपर बनाई गई हैं, ठीक है, वो काफी सारी कंपनीज बन जाएंगी जो कि सारा फंड चैनलाइज करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज में थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये एक तरीके का क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो जाएगा, वेयर बिग मनी फंडेड पॉलिटिकल पार्टीज गेट फंड फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिलेगा कॉर्पोरेट से, और इन रिटर्न लॉज पॉलिसीज स्कीम्स इंसेंटिव्स वर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डोनर्स। मतलब क्रॉनिक कैपिटलिज्म लेन देन का एक तरीके का सिस्टम है। क्रोनिक कैपिटलिज्म कैसे लेन देन का सिस्टम है? क्रोनिक कैपिटलिज्म में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करेंगे कैपिटलिस्ट, ठीक है, ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। और जब वो इलेक्शन जीत जाएंगी ना, तो इन टर्न यही पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज और लॉज बनाएंगी जो फेवर करेंगी कॉर्पोरेट को। इसी को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। फाइन, क्रोनी कैपिटलिज्म क्लियर है? तो यही जजमेंट कह रहा था सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो आपने अनलिमिटेड फंडिंग अलाउ कर दी ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को, ये वापस से क्रोनी कैपिटलिज्म को देश में बढ़ा देगी। ठीक है, इसलिए हमें इसको खारिज करना है। ठीक है, और क्या आर्गुमेंट दिया कोर्ट ने एक आर्गुमेंट दिया, सेंट्रल बैंक जो है ना कंट्री में केवल वही अथॉरिटी है जो इश्यू कर सकती है करेंसी नोट्स और बॉन्ड्स। ठीक है, ये कहां दिया गया था? ये सेक्शन 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो एक्ट है ना उसमें दिया गया था। आरबीआई के एक्ट सेक्शन 31 में यह दिया गया है कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय आरबीआई एक्ट, ठीक है, शैल ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इश्यू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और बॉन्ड। मतलब आरबीआई या आरबीआई एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल बैंक जिसको ऑथराइज करती है सिर्फ वही बॉन्ड इश्यू कर सकता है। ठीक है, ऐसा लॉ प्रिवेल कर रहा था। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई तो गवर्नमेंट ने ये आरबीआई एक्ट को अमेंड किया, ठीक है, यूजिंग फाइनेंस एक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट क्यों यूज किया। आरबीआई एक्ट को अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट का यूज किया। उसके बाद एक नया क्लॉज डाला उसमें 31(3), उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में तुम्हारी एसबीआई आती है, एचडीएफसी आती है, आईसीआई आती है, सारी की सारी ये सारी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि शेड्यूल्ड बैंक कैन इश्यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब अमेंड करके आरबीआई के एक्ट में डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि शेड्यूल्ड बैंक भी इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू कर सकती हैं। ठीक है, और दिस इज डन थ्रू फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए किया गया था। अब फाइनेंस एक्ट का इसलिए यूज किया क्योंकि जो फाइनेंस बिल है ना वो केवल और केवल लोकसभा में पास करवाना है, राज्यसभा में पास नहीं करवाना होता है फाइनेंस बिल, एज यू नो फ्रॉम द पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल का यूज किया। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए कुछ और एक्ट्स में अमेंडमेंट की गई गवर्नमेंट के थ्रू। वो कौन कौन से एक्ट हैं? गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया, जिसके थ्रू उन्होंने ये डाला कि इलेक्टोरल बॉन्ड शेड्यूल्ड बैंक इश्यू कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को भी अमेंड किया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को भी अमेंड किया, और कंपनीज एक्ट 2013 को भी अमेंड किया। तो कौन कौन से एक्ट अमेंड किए? आरबीआई का एक्ट, आरपीए का एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ये सारे एक्ट को अमेंड किया और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर है? आफ्टर दैट क्या हुआ? When 4 laws are amended to introduce a scheme that strikes at the root of democracy, namely transparency, ठीक है, and elections of the nations। जब आप 4 एक्ट को आप अमेंड कर रहे हो, ठीक है, और एक स्कीम ला रहे हो जो कि टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करती है डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इलेक्शंस इन द कंट्री, ठीक है, तो इनको
कोर्ट को खारिज करना एक तरीके का इट्स अ कंपल्सरी टास्क फॉर द कोर्ट टू डिक्लेयर दिस स्कीम एज इनवैलिड बिकॉज इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, दिस ऑल्सो रेसिस फंडामेंटल इशू इन द डेमोक्रेसी कि एनी गवर्नमेंट विद अ मेजॉरिटी कैन पास एनी बिल विच बिकम्स लॉ। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 4 लॉज को अमेंड किया और एक ऐसी स्कीम लाई जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक नेचर है ना इलेक्शंस का उसको इफेक्ट कर रही थी। तो ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इसको स्ट्राइक डाउन करें। फाइन, क्योंकि इट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्लियर है। और नीचे राइटर ने ये कहा है कि फंडामेंटल इशू ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में होती है तो वो तो मेजॉरिटी में लोकसभा में भी होगी। ठीक है, तो जब वो लोकसभा में मेजॉरिटी में होती है ना तो वो अपने विम्स एंड फैंसीज के थ्रू सारे एक्ट पास करवा लेती है, या तो उनको मनी बिल डिक्लेयर करके या फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके। अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी है तो वो वैसे ही पास हो जाता है। उसके बाद जो एसेंस ऑफ जजमेंट है जो 15 Feb 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ध्यान से सुनना इसको, बीच में छोड़ के नहीं जाना सेशन, लिसन इट केयरफुली। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम हैज बीन स्ट्रक डाउन। इस स्कीम को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऑल अमेंडमेंट्स टू आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 14 और 19 के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करता है। ये सारी अमेंडमेंट्स जो गवर्नमेंट ने की थी ना, 4 एक्ट को अमेंड किया था स्कीम लाने के लिए, ये सारी अमेंडमेंट्स वायलेट करती हैं आर्टिकल 14 और 19 को। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब आर्टिकल 19 ये कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गई ना तो गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन डिनाई करवा दिया कि कौन से कॉर्पोरेट किस पार्टी को फंड दे रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लीक होगी। तो ये आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। फिर आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है वो भी वायलेट होता है। वो कैसे वायलेट होता है? वो ऐसे वायलेट होता है कि इफ यू आर मींस बिग नेशनल पार्टीज गेट अ लिवरेज टू गेट मैक्सिमम फंडिंग। ठीक है, बाकी जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं या जो न्यू नेशनल पार्टीज हैं लाइक आम आदमी पार्टी, दे आर नॉट गेटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू फाइट द इलेक्शंस। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी को भी वायलेट करता है। और उसके बाद ठीक है, गवर्नमेंट जजमेंट ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 19 और 14 को वायलेट करता है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती थी इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और ये कहा कि आपको अभी तक जितने भी फंड मिले हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ इश्यूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, उनको आप रोक लगाएंगे, उनको आप इश्यू नहीं करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है, और जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं आपके पास, ठीक है, उनको आपको इलेक्शन कमीशन को उनकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करनी है बाय 6 मार्च 2024, अगले महीने तक। मतलब जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू किए गए हैं जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे और जिन कॉर्पोरेट हाउसेज ने इश्यू किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को मार्च 6 को। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आपको अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले करनी पड़ेगी ये सारी इंफॉर्मेशन आम जनता के लिए। तो आम जनता ध्यान से सुन लो, ठीक है, एवरीवन शुड गो एंड वॉच इलेक्शन कमीशन वेबसाइट ऑन 6 मार्च कि कौन कौन सी पार्टीज को कहां से फंडिंग मिली है। इफ यू आर अवेकन सिटीजन, ठीक है, डेट याद कर लो 6 मार्च 2024, यू हैव टू गो एंड वॉच ऑन इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। क्लियर? तो लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि देखो दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया इस बार। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यू कैन राइट इन मेंस व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन आवर कंट्री। तो जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नल और इनवॉइड कर दिया। ठीक है, सो वी आर डन विद द आर्टिकल की स्टोरी आपको क्लियर है? स्टोरी क्या है? 15 Feb 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने 2018 को लाई थी, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। क्यों?
क्योंकि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 14 और 19 को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कैसे फंडिंग लाई थी? गवर्नमेंट ने ऐसे फंडिंग लाई थी, ये वाला लॉ, कि ये जो आरबीआई एक्ट है इसको अमेंड किया था उन्होंने फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया था, उन्होंने आरपीए इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट को अमेंड किया था। फाइन, स्टोरी क्लियर है? डन। ठीक है, फाइन। तो वी हैव डिस्कस्ड एडिटोरियल, हिंदू का एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल गो ऑन एंड डिस्कस द एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। एक बात मैं बता दूं, मैं हिंदू के साथ साथ जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है ना, उसको भी डिस्कस करूंगा डेली, ठीक है। इट्स अ न्यू पार्ट विच वी हैव एडेड, ठीक है। तो आज जो एक्सप्लेन सेक्शन में पहला आर्टिकल है वो ये है कि चाइनाज डिफेंस विलेजेस अलोंग एलएसी विच इज पॉपुलेटिंग। मतलब चाइना कुछ विलेजेस बना रहे हैं डिफेंस के लिए। कहाँ पे? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। बॉर्डर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न ये बॉर्डर है ना चाइना के साथ इंडिया का, लोहित वैली, तवांग वगैरह रीजन में वो बहुत सारे गांव बसा रहा है, ठीक है। तो इस पे एक वीडियो है, पहले वीडियो वॉच करो, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जस्ट वॉच द वीडियो। Imagine a village, not just any village, but a defense village strategically located along a contentious border. China has made this a reality along the line of actual control LAC. Over the past 5 years, 628 Xiaokang or well-off villages have sprung up along the LAC, a line that separates India and China. These villages, a testament to Chinese construction prowess, stood unoccupied until recently. Now they bustle with the life of Chinese residents, a stark change that hasn't gone unnoticed. But these aren't your typical villages. They are dual-use infrastructures serving both civil and military purposes. Their existence is a subtle yet powerful statement, an assertion of Chinese claims over certain areas along the LAC. As you can imagine, this development has not been received well by all. These defense villages, now being populated by Chinese residents, have become a cause for concern for the Indian military. In response to China's strategic move, India has initiated its own Vibrant Villages program in 2022. In a bid to counter China's Jiaokang or well-off villages, India has embarked on a transformational journey of its own. The plan is to develop 663 border villages into modern amenity-rich settlements and even tourist attractions. At least 17 such border villages along the borders with China in Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh have been selected for development as part of a pilot project. But it's not just about villages. Both India and China have been tirelessly working to strengthen their infrastructure along the line of actual control. New roads, bridges and helipads are being constructed to improve connectivity and fortify the borders. As the world watches, the chess game continues with each nation strategically positioning their pieces along the line of actual control. वीडियो देख लिया आपने? मैं अब आपको ये आर्टिकल समराइज करवा देता हूँ, सेशन को बीच में मत छोड़ना, ठीक है। 2019 में चाइना ने विलेजेस को बिल्ड स्टार्ट करना शुरू किया एलएसी बॉर्डर्स पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उन पे, ठीक है। तो फिर चाइना ने 628 वेल ऑफ विलेजेस अलोंग इंडियन बॉर्डर्स को डेवलप कर लिया है, ठीक है। 628 विलेजेस को डेवलप कर चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्चुअल पर्पसेस है ना, देखो विलेजेस को डेवलप किया, अब इंटरनेशनल लेवल पे चाइना ये बोल रहा है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अवर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के जो पॉपुलेशन है उसको वेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट जो कि विलेजेस में स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं मल्टी डबल स्टोरी, ठीक है, स्पेशियस बिल्डिंग्स, मतलब काफी सारी जगह है उनमें, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लार्ज हैं बहुत सारी, ठीक है, और प्लैन्ड विलेजेस हैं। मतलब प्लैन्ड इन द सेंस कि कितनी बड़ी कितनी चौड़ी रोडें होंगी, ठीक है, ताकि गाड़ी आ सके, ठीक है, वाटर सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, कितने लोग ठहर सकते हैं, इन सब की प्लानिंग के साथ बसाए जा रहे हैं विलेजेस, ठीक है।
तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि एक्चुअल पर्पसेस ऑफ दीज विलेजेस हैज रिमेन्ड अनक्लियर, अभी तक अनक्लियर है। हालांकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से अंडरस्टूड हो रहा है कि ये डुअल यूज के लिए बनाए गए हैं। डुअल यूज मतलब बोथ फॉर सिविल एज वेल एज मिलिट्री पर्पस। मतलब ये जो गवर्नमेंट चाइना की विलेजेस डेवलप कर रही है ना, और ये जो इंटरनेशनल फोरम पे कह रही है कि ये सारे विलेजेस हम अपनी सिविल पॉपुलेशन को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने के लिए कर रहे हैं, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है ना, ये डबल स्टोरी, ठीक है, स्पेशियस बिल्डिंग्स, इनसे पता चल रहा है कि ये ड्यूअल यूज के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें सिविल यूज भी होगा और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा। क्लियर? और ये इंडिया के लिए खतरा है। ठीक है, अब व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दीज विलेजेस इन चाइना सिस्टम? अब चाइना की गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था चाइना लैंड बॉर्डर पे, ठीक है, 2022 में। अब वो लॉ लाने के बाद गवर्नमेंट ने इस लॉ की बैकिंग के थ्रू, मतलब लीगली अगर आप पूछें कि ये विलेजेस चाइना कैसे बना रहा है, तो उसने एक लॉ लाया था 2022 में, उसके थ्रू ही उसको लीगल बैकिंग मिलती है इन विलेजेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और चाइना की ऑफिशियल जो एजेंसी है न्यूज़ की, उसने कहा है कि द लॉ ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट द स्टेट शैल टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर डिफेंस, ठीक है, support economic and social development as well as opening up in border areas, improve public services and infrastructure to encourage and support life and work there। मतलब एक तो बॉर्डर में डिफेंस हमें बढ़ाना है, ठीक है, प्लस जो बॉर्डर की पॉपुलेशन है ना, उनको सभी को हमें प्रोवाइड करवाना है गुड लाइफ एंड गुड वर्क। क्लियर है? ये लीगल बैकिंग है। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? इंडिया का रिस्पॉन्स ये था कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये विलेजेस बिल्ड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2022 में। हमारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो 2022 में लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका ये मोटिव है कि वो बॉर्डर विलेजेस को मॉडर्न विलेजेस में डेवलप करेगी विद ऑल नेसेसरी अम्यूनिटीज। ठीक है, नेसेसरी मतलब उसमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फूड, ठीक है, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल्स वगैरह सारे कुछ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब विलेज को एक मॉडर्न विलेज में डेवलप करना है बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर द प्रोग्राम इंडिया प्लान्स टू डेवलप 63 बॉर्डर विलेजेस, 663 बॉर्डर विलेजेस को हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से 17 ऐसे विलेजेस होंगे जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगे हुए होंगे। कहाँ पे? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 17 ऐसे विलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाइना डेवलपिंग अलोंग एलएसी? ठीक है, एक तो विलेजेस बना रहा है, ठीक है, जो कि एक खतरा है इंडिया के लिए। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया अपना वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है, उसमें हम बिल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा विलेजेस के अलावा चाइना क्या डेवलप कर रहा है? चाइना इसके अलावा न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस बना रहा है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी थ्रू द पासेस। चाइना हाउसेस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। कहाँ? भूटान की टेरिटरी में। ठीक है, दिस इज भूटान, यहाँ पे भी डेवलप कर रहा है चाइना अपने हाउसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट देयर मिलिट्री। क्लियर है? आर्टिकल की स्टोरी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ये जो एलेक्सी नावाल्नी जो डेथ हुई थी, वी हैव शोड यू अ वीडियो इन द स्टार्टिंग, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो थर्ड आर्टिकल है वो है कि व्हाट स्वामीनाथन पैनल सेड। एमएसपी और जो फार्म प्रोटेस्ट अभी चल रहा है ना दिल्ली वगैरह में, जिसमें किसानों ने 12 डिमांड्स रखी हैं अपनी, उस पर एक वीडियो है मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट में वीडियो है, विजुअल्स के फॉर्म में पूरा डिस्कस कर दूंगा उसी में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जस्ट वॉच इट। उसके बाद जो ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उसने एक चीज और बना दी है जिसका नाम है सोरा। ठीक है, सोरा का क्या काम है? इट विल क्रिएट वीडियोस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करेगा सोरा, जो कि ओपन एआई का एक नया
ब्रेक थ्रू है। अब इस ब्रेक थ्रू में क्या है कि ये जो सोरा मॉडल है ना, दिस कैन जनरेट वीडियोज अप टू अ मिनट, 1 मिनट लॉन्ग तक की वीडियोस को डेवलप कर सकता है, जो आप इसको टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे। क्लियर है? बस इतना ही हमें याद रखना है कि सोरा एक टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर या अपना वेबसाइट है, ठीक है, और ओपन एआई की ये वेबसाइट है। अभी अवेलेबल है क्या सबके यूज के लिए? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नॉट येट। कंपनी हैज सेड इट विल टेक सम सेफ्टी स्टेप्स अहेड ऑफ मेकिंग सोरा अवेलेबल टू ऑल ऑफ इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी हमारे लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। अब हम हिंदू डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं फ्रंट पेज से, सारी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, पूरा हिंदू वेरी इलैबोरेटली। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू में आज शायद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आया है और साइंस सेक्शन नहीं आया है, तो वी हैवेंट कम अक्रॉस द साइंस सेक्शन एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इन टुडेज हिंदू, वरना हम उसको डिस्कस करते थे। तो हमने एडिटोरियल डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है वो रशिया के जो अपोजिशन लीडर हैं, इसकी वीडियो बन चुकी थी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाल के उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया था, 11 बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ टैक्स पे नहीं किया था जो कि रिमेनिंग था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्लियर है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको स्टोरी क्लियर कर दी। बाकी फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यू कैन स्किप इट, ठीक है। ऑन पेज 2 सिटी सेक्शन, on page 2 city section as well, you can skip it, no important news, fine। थर्ड पे एडवर्टाइजमेंट है। फोर्थ पेज पे स्टेट्स पे नो इम्पॉर्टेंट न्यूज, यू कैन स्किप इट होल। पेज 5 पे स्टेट्स पे अगेन नो इम्पॉर्टेंट न्यूज, यू कैन स्किप इट। पेज 6 ऑन स्टेट्स अगेन ऑल पॉलिटिकल न्यूज, नो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देख लो यहाँ पे आपको बजट आया है, ठीक है, एड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। कहाँ पे बजट आया है? अपना कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लाया है, ठीक है। तो इट्स पॉलिटिकल। उसके बाद गवर्नर नॉमिनी नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी पॉलिटिकल है। सीएम रिजेक्ट्स, ये भी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल, ठीक है। ऑन पेज 7 दिस इज एडवर्टाइजमेंट। पेज 8 पे एडिटोरियल था जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पेज 9 पे ग्राउंड जीरो में क्या है? ग्राउंड जीरो में ये रिपोर्ट दी गई है कि जो 8 फरवरी को हल्द्वानी उत्तराखंड में जो राइट हुई थी ना, एक मॉस्क को गिरा दिया था, उसकी वजह से जो राइट्स हुई थी उसी की स्टोरी दी गई है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट, ठीक है। आफ्टर दैट ऑन पेज 10 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेट्स सी इट। पहली जो न्यूज़ है वो है कि ईडी प्रोब फाइंड्स नो फेमा वायलेशन इन पेटीएम केस, ठीक है। अच्छा, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट डाउन इन कमेंट्स अगर आपको पता हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटीएम। चलो मैं ही बता देता हूँ, पे थ्रू फोन, पे टी का यहाँ पे थ्रू फोन, सॉरी इट्स एम मोबाइल, ठीक है, पे थ्रू मोबाइल। तो जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, इसने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके वायलेशन को चेक किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो केस चल रहा है ना, उसके केस में ही। तो उसने पाया है कि कोई भी वायलेशन नहीं है फेमा का, केवल और केवल आरबीआई का जो वायलेशन किया था पेमेंट बैंक ने, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने, जो कि आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था 31 जनवरी को कि पेमेंट बैंक जो पेटीएम वाली है वो कंप्लाई नहीं कर रही है। जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी ना आरबीआई की, उसमें उसने कहा था कि केवाईसी जो डिटेल्स है ना वो कस्टमर से प्रॉपरली कलेक्ट कर रही है, ना
कंप्लाई कर रही है लॉस से, तो इसलिए उसके होल्ड को लगा दिया, उसके काम को होल्ड पे लगा दिया था किसने, आरबीआई ने। ठीक है, ये 29 फैब तक के लिए लगाया था, बट 29 फैब के बाद अब इसको बढ़ा के 15 मार्च कर दिया। मतलब 15 मार्च तक पेटीएम बैंक, जो पेमेंट बैंक है, वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को कैरी आउट कर सकती है, सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह, बट 15 के बाद वो टोटली उसको अपने ये सारे काम रोकने पड़ेंगे एज पर द आरबीआई सर्कुलर। आफ्टर दैट इट विल नॉट बी अलाउड टू फंक्शन लाइक अ बैंक। ठीक है, जब तक वो कंप्लाई नहीं करती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शरद पवार, इट्स पॉलिटिकल, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी पॉलिटिकल है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी जो पेज 10 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अहेड ऑफ पोल 2024 के इलेक्शन से पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये कहा गया है कि आप अब की बार जो डिलीवर करेंगे फूड ग्रेन्स, उनके जो बैग्स हैं उन पे आपको पीएम की फ़ोटो दिखाना अनिवार्य है। मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे लिख के आएगा जो भी राशन कार्ड से सिटीजन्स, ठीक है, रेशन शॉप पे जाके ये सारे फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसमें पीएम की फ़ोटो भी लाना मैंडेटरी कर दिया है एफसीआई के लिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी ये मैंने इसलिए टैग कर दिया आपको बिकॉज इट्स अ, आई थिंक इट्स पॉलिटिकल मूव मोर देन वेलफेयर टास्क। इट्स अ पॉलिटिकल मूव सो दैट गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है कि वी आर वेरी वरीड अबाउट द सिटीजन्स, ताकि सिटीजन को पता चलेगी ये फ्री राशन मिल रहा है मोदी जी की वजह से। फाइन, बाकी इस इम्पोर्टेंट कोई भी न्यूज़ नहीं है इस आर्टिकल में, इस पेज पे। ऑन पेज 11 एज वेल, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज़ है जो राहुल गांधी ने ये बोल दिया है कि भाई जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया ना अपोजिशन का 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, वो इंश्योर करेगा कि एमएसपी की लीगल गारंटी प्रोवाइड करें। अब ये पता नहीं कहाँ से लीगल गारंटी प्रोवाइड करेंगे, सरकार में आने दो तब इनको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो कतार में नेवी ऑफिसर्स को कम्यूट करके वापस इंडिया लाया गया है, उसमें एक लोगों ने, जो फॉर्मर नेवी कमांडर हैं अमित नागपाल, उन्होंने कहा है कि वी डिड इट नथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट एनिमीज़ ऑफ कतर। ठीक है, तो हमने कुछ गलत नहीं किया था उनकी कंट्री में, तो वे हम जायज़ तरीके से वापस आए हैं। उसके बाद नथिंग इम्पोर्टेंट ऑन दिस पेज। पेज नंबर 12, ऑन पेज 12 एज वेल व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कांट यूज मिसलीडिंग एड्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि जैसे कि आप देखते हैं यूपीएससी भी जब कैंडिडेट्स पास करते हैं ना, तो काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पैम्पलेट वगैरह पे छाप देते हैं कि ये टॉपर हमारे यहाँ से था, ये टॉपर हमारे यहाँ से था। तो जो कंज्यूमर अथॉरिटी है ना, अंडर कंज्यूमर एक्ट, उन्होंने चेक किया, उन्होंने पाया कि ये काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग होते हैं। तो दे सेड कि अब जो कोचिंग सेंटर हैं वो मिसलीडिंग एड्स को यूज़ नहीं करेंगे। जो जेन्युइन है उनके यहाँ से कैंडिडेट जो पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं के आपको उन्हीं की रिजल्ट पे क्लेम करना है कि हाँ इस बंदे ने हमारी गाइडेंस ली थी। अगर एक भी ऐसा पाया गया ना जिसमें बंदे ने गाइडेंस नहीं लिया एंड यू शोड इट दैट ही वॉज रिलेटेड टू आवर कोचिंग, तो आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। हो सकता है आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। फाइन, बाकी नथिंग इम्पोर्टेंट ऑन दिस पेज। बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो चाहबार पोर्ट है ना ईरान में, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए कहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंडिया ने। इंडिया हैज़ अर्ज्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ टू यूज़ पोर्ट चाहबार लोकेटेड इन ईरान टू ट्रेड विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे कहा इंडिया ने? इंडिया ने कहा है जब 6th रीजनल डायलॉग हो रहा था, सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर ऑन अफगानिस्तान, कहाँ पे? बिश्केक में, किर्गिस्तान के कैपिटल। ठीक है, किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक में ये रीजनल डायलॉग चल रहा है
ठीक है, वहाँ पे इंडिया ने कहा है कि आपको चाबार पोर्ट का यूज़ करना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो 5 एशियन कंट्रीज है ना, 5 स्थान, ठीक है, कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये सारे जो 5 स्थान है ना, इनको कहा है कि आप ईरान का जो पोर्ट है ना, कौन सा पोर्ट, चाबार पोर्ट, इसको यूज़ करिए ट्रेड के लिए, ठीक है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है ना अफगानिस्तान में, वो इंक्लूसिव होनी चाहिए और पीपल को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। और तालिबान रूल कंट्री शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस, कंसेंसस के थ्रू रूल होना चाहिए उस कंट्री में, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑन पेज 13 देयर इज़ अ वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, वो ये हाईलाइट्स हैं कि यूएस की कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास कर दिया जिसमें चाइना तिब्बत डिस्प्यूट बिल है जिसका नाम। इस बिल के थ्रू क्या यूएस ने कहा है, यूएस ने कहा है कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज पास्ड अ बिल दैट विल स्ट्रेंथन द एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स to push the Chinese government to resolve the long standing तिब्बत चाइना डिस्प्यूट। अब इसको ध्यान में रखना आप, तिब्बत चाइना डिस्प्यूट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है यूएस, ठीक है, बट हमारी कंट्री इंडिया ने तिब्बत को एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना मान लिया था बैक इन 1980 60s आई थिंक, ठीक है। तो at the international level US still consider China Tibet as a conflicting situation, not a well settled situation, ठीक है। उसके विषय में एक उन्होंने बिल भी पास किया है, ठीक है। और बाकी ग्रीस में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है, ठीक है। बाकी नथिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑन दिस पेज। एंड पेज 14 बिजनेस सेक्शन, पेज 14 पे क्या है कि आरबीआई लेट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज़र डिपॉजिट पे विल, ये मैंने कहा था ना आपको 15 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया, पहले फेब एंड था बट नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड टू 15 मार्च। बाकी नथिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑन दिस पेज, ठीक है। बाकी रेस्ट इज स्पोर्ट्स सेक्शन, बाकी पूरा स्पोर्ट्स है, ठीक है, विच इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज हिंदू, आज का हिंदू हमने पूरा कंप्लीट किया। आई होप आप लोग सेशन को बीच में छोड़ के नहीं गए होंगे, यू हैव वॉच्ड द फुल एनालिसिस, ठीक है। एक्सप्लेन पेज भी हमने एक्सप्लेन किया है हिंदू का, और हमने हिंदू का भी एनालिसिस किया है, सो वी हैव डन इट। अब हम कल फिर मिलेंगे नए हिंदू के साथ, नई न्यूज़ के साथ, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइस।